Hello students, we'll be starting today with application of derivatives. We are going to see application of derivatives in geometry today. Let's see some terminologies, how do we apply these derivatives in our geometry. So the terminologies over here that we are going to study is the slope of a tangent and the normal. Now let y is equal to fx be a continuous function of x representing a curve in xy plane, and p x1 comma y1 be any point on the curve. Then dy by dx at the point x1 comma y1 is equal to f dash of x at the point x1 comma y1 represents slope, also called as gradient of the tangent to the curve at the point p x1 comma y1. Now here suppose you are given a curve, एक curve दिया है हमें y is equal to fx and this is in the xy plane, and you are given a point p x1 comma y1 on that curve, and if you find out what is the derivative of this y with respect to x, that is dy by dx, और ये dy by dx में अगर आपने point p x1 comma y1 substitute किया, then that is called as the slope of the curve at the point p x1 comma y1. तो ये point के लिए हम उसका slope find out करते हैं by finding dy by dx and putting the value as x1 comma y1 in place of x and y. It is also called as the gradient of the curve. Now we also know that this normal is perpendicular to the tangent, and hence we know that whenever we know that two lines whose slopes are say m1 and m2, if they are perpendicular to each other, then we can say that m1 into m2 is equal to -1. So अगर दोनों में से एक का slope मालूम है तो हम दूसरे का slope निकाल सकते हैं. So the same thing we are using over here. तो अगर एक का slope हमने लिया है m और दूसरे का ले लिया m dash, तो हम लिख सकते हैं m is equal to -1 divided by m dash, or it is m dash is equal to -1 divided by m. So the slope is perpendicular to the tangent, hence the slope of the normal at p will be the negative of the reciprocal of the slope of tangent at the point p. Now here we are going to consider m and m dash are the slope of the tangent and the normal respectively. Then we can say that m is equal to dy by dx at x1 comma y1, and m dash is reciprocal, negation of the reciprocal of this m, that is -1 divided by dy by dx at the point x1 comma y1, provided that this denominator dy by dx at x1 comma x1 comma y1 should not be equal to 0. So this you have to remember. Now if you know the slope of the tangent and the normal, we can find the equation of the tangent and normal to the curve. So the equation of the tangent at the point p x1 comma y1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. ये हमारा slope point form है जो हमने last year learn किया था. Even in 10th standard you have learned this. And here this value of m, अभी हमने देखा m का value हमें मिलता है derivative of y at the point x1 comma y1. So that is dy by dx at the point x1 comma y1. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द tangent. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ m ओवर हियर. तो अगर m का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1. हमने सिर्फ यहाँ पे m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. Now this is the equation of the tangent. We can also find out the equation of the normal. The equation of the normal at the point x1 comma y1 is given by, again we are using the same slope point form over here. So that is y minus y1 is equal to
अब अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए स्लोप हमने लिया है m डैश, सो दैट इज m डैश इंटू x माइनस x1 एंड हियर वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m डैश इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। अब हम m डैश का वैल्यू ये वाले इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स इंटू at the point x1 comma y1 into x minus x1. So these are the things that we are going to use in our examples. Let us start with exercise number 4.1. The first question is, find the equation of tangent and normal to the curve at the point on it. So now a curve is given to us, that is y is equal to 3x square minus x plus 1, and we want to find out the equation of the tangent and the equation of the normal at the point 1 comma 3. Now suppose you are given any curve, suppose हमें एक curve दिया हुआ है इस तरह का, और अगर हम ये पॉइंट अगर देखिए, हमें सपोज ये पॉइंट के लिए tangent और नॉर्मल फाइंड आउट करना है. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट, अगर हमने यहाँ पे tangent ड्रॉ किया, राइट, सो दिस पॉइंट इज पर्टिकुलरली कॉमन, ये जो हमारा पॉइंट है वो कॉमन है टू द कर्व एज वेल एज द टेंजेंट. सो ये जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा इक्वेशन जो टेंजेंट है या फिर जो नॉर्मल है उसका जो स्लोप है और हमारे कर्व का स्लोप है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेम रहेगा. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस रूल. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ दिस कर्व. अब हमें पता है कि ये पॉइंट के लिए हमारे टेंजेंट का स्लोप और हमारे कर्व का स्लोप सेम हो जाएगा, तो हमें ये टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. ये टेंजेंट के ऊपर हमें एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सो द पॉइंट ओवर हियर, वन ऑफ द पॉइंट इज गिवन एज 1,3 ऑन द कर्व. तो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, देन वी कैन अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम. So here in the solution we are given that y is equal to 3x square minus x plus 1. ये हमारा equation of the curve है. हम इसे differentiate करेंगे with respect to x. So as we differentiate this with respect to x, हमें मिलता है dy by dx is equal to 3x square का derivative हो जाएगा 6x minus 1. Next, अब हमें चाहिए है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट. ये पॉइंट के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे इसका स्लोप, तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा. सो विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1,3 एंड दैट इज गिवन बाय dy बाय dx एट द पॉइंट 1,3 इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर द स्लोप इज m. तो अगर m हमारा स्लोप है, हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के अंदर x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं. सो x के जगह पे हमने डाल दिया 1 और y के जगह पे 3. सो वी गेट 6 इंटू 1 माइनस 1, दैट विल गिव अस 5. अब ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 5. अब हमें चाहिए है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो यहाँ पे हमारे पास y1 का वैल्यू है 3, हमारे पास x1 का वैल्यू है 1. विल पुट द वैल्यू ओवर हियर. m का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमें मिलता है y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1. We'll open up the bracket, will give us y minus 3 is equal to 5x minus 1 and x यहाँ पे पॉजिटिव है तो सभी टर्म्स को हम ये साइड लेके आते हैं, तो हमें मिल जाता है 5x minus y minus 2 is equal to 0. तो ये मिला हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब हमें चाहिए है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. तो नॉर्मल के लिए हम पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल का. सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,3 इज m डैश. अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल इज m डैश इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय m. तो m का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है. विल पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड दैट विल गिव अस m डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5. तो हमें m डैश का वैल्यू मिल गया.
अब हमें चाहिए है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. दिस शुड बी नॉर्मल. So we want the equation of the normal. So equation of normal हमें मिल जाता है. The equation of the normal is given by y minus 3 is equal to minus 1 upon 5 into x minus 1. Again cross multiply करेंगे तो हमें मिलता है 5 into y minus 3 is equal to minus 1 plus minus 1 into x plus 1. So that will give us 5y minus 15 is equal to minus x plus 1 and giving us x plus 5y minus 16 is equal to 0. तो हमें मिला the equation of the tangent and the normal are 5x minus y minus 2 is equal to 0 and x plus 5y minus 16 is equal to 0. So this is what we are wanted. ये हमें चाहिए था equation of the tangent and normal, and this is how the sum gets solved. Let's take another example. So first group third sub question हम देख रहे हैं. The question is find the equation of tangent and normal to the curve at the point given on it. So here we are taking the third sub question. This is x square plus y square plus xy is equal to 3 at the point 1 comma 1. Now if you look at this function, अगर हम ये function देखें, ये function हमारा implicit function है और implicit function में dy by dx कैसे निकालते हैं वही सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे. Then we are going to find out the slope of the tangent and we'll find the equation of the tangent. if slope of the tangent मिलने के बाद slope of normal मिल जाएगा and then we can find the equation of the normal also. So let's start with the solution. So here the equation of the curve is given as x square plus y square plus xy is equal to 3. हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सो हियर अगर x से वी आर डिफरेंशिएटिंग तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है u इंटू वी, सो विल अप्लाई u इंटू वी रूल ओवर हियर. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस 2x प्लस 2y. नाउ y इज अ फंक्शन तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स प्लस ये वाले टर्म के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी. सो दैट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 3. कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0. नाउ लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब हम डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को साथ में करेंगे, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको साथ में करेंगे. सो वी गेट 2x प्लस वाई प्लस दिस इज 2x प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड रखेंगे तो हमें मिल जाता है 2y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई. हमें सिर्फ अकेला चाहिए है डी वाई बाई डी एक्स. सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2y प्लस एक्स. तो ये हमें मिला dy बाई डी एक्स, बट वी वॉन्ट द स्लोप ऑफ द tangent. So let's find the slope of the tangent. So slope of the tangent at the point 1 comma 1 will be dy by dx at the point 1 comma 1 is equal to m. That is equal to हम x के जगह पे 1 डालेंगे, y के जगह पे भी 1 डालेंगे. So that value is equal to 2 into 1 plus 1 divided by 2 into 1 plus 1. That gives us minus 3 divided by 3 and m is equal to minus 1. अब हमें मिल गया स्लोप ऑफ द tangent. वी नो द पॉइंट, सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द tangent. So equation of the tangent at the point p1 comma 1 is given by y minus 1 is equal to minus 1 into x minus 1. ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें मिलता है y minus 1 is equal to minus x plus 1. x नेगेटिव है तो सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें मिल जाता है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन ऑफ द tangent. Now we want what is the equation of the normal, but before that we want what is the slope of the normal. So let's find slope of the normal at the point 1 comma 1 is equal to m dash, that is minus 1 divided by m. तो m का वैल्यू हमारे पास है माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 कैंसिल हो गया तो हमें मिला m डैश इज इक्वल टू प्लस 1. स्लोप मिल गया.
अब हमें चाहिए है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. So that will give us equation of the normal at the point 1 comma 1 will be given by y minus 1 is equal to 1 into x minus 1. ब्रैकेट ओपन करने के बाद we get y minus 1 is equal to x minus 1. x अब यहाँ पे पॉजिटिव है, so we'll bring all the terms to the right hand side. So that will give us x minus y is equal to 0. तो हमें मिल गया equation of the tangent and we got the equation of the normal. So hence equation of the tangent and the normal are x plus y minus 2 is equal to 0 and x minus y is equal to 0 respectively, and the sum is over. See the procedure is the same. दोनों जगह पे हमने प्रोसीजर सेम अप्लाई किया है. सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया व्हाट इज dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट दिया था वो पॉइंट को हमने dy बाई डी एक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट किया. सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिला स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलने के बाद हमने फॉर्मूला यूज किया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें मिल जाता है x1 कॉमा y1 और यहाँ पे हमारे पास m का वैल्यू ऑलरेडी है. सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इन दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब हमारे पास एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट था, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वजह से हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल जाता है. इसका जो भी वैल्यू आता है m का, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे और उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे. सो दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल के बाद इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए. सो सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, सिर्फ m के जगह पे अब हमने यूज किया है m dash. So again putting the values of m dash x1 and y1 will give us the equation of the normal. So अगर पॉइंट दिया है तो हम ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो चाहे वो पैरामेट्रिक फंक्शन रहे या फिर वो इम्प्लिसिट फंक्शन रहे या फिर simple function रहे, the procedure will remain the same. First find out the value of dy by dx. So I hope you have understood the procedure. Let's take another question. Next we are looking at group 2 question. Second example is find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square plus 5 where the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 is equal to 0. अब पहले हम ये प्रॉब्लम को देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहले तो हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है. द कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व. लेकिन प्रीवियसली जैसे हमारे पास पॉइंट दिया था वैसा यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है. देयर इज नो पॉइंट गिवन टू अस. लेकिन हमें क्या दिया है, वी आर गिवन दैट हमारी जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है, राइट, दिस रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन. ये वाले लाइन को ये पैरेलल है. अब पैरेलल लाइन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो यू कैन से सपोज द लाइन्स आर हैविंग स्लोप m1 एंड द सेकेंड लाइन इज हैविंग द स्लोप m2. तो हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन. तो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे इसके लिए. बट सिंस नो पॉइंट इज गिवन टू अस तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमें स्लोप और पॉइंट की जरूरत है. स्लोप तो हमें यहाँ से मिल जाएगा लेकिन हमारे पास पॉइंट नहीं है. सो लेट अस कंसिडर अ पॉइंट. सो लेट पी एच कॉमा के बी द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 where the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 is equal to 0. तो हमने क्या किया, ये वाला जो कर्व है हमारे पास, ये कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया. वो पॉइंट है h कॉमा k. दिस इज द पॉइंट. अब ये पॉइंट के लिए ही हमारी टेंजेंट पैरेलल होगी ये वाली लाइन के लिए. फाइन.
सो ये अगर पॉइंट हमारे कर्व के ऊपर है तो ये पॉइंट ये कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 5। तो पॉइंट ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ we are given that the equation of the curve is y is equal to x square plus 5। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम देख रहे हैं, सो डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिलता है dy by dx is equal to 2x। अब we have got dy by dx, we want slope of the tangent, so tangent हमारी ये point P के ऊपर है, right? So slope of the tangent at the point ph comma k is given by dy by dx at the point ph comma k. Let us call this slope as m1, so m1 is equal to 2h. Now the slope of the line 4x minus y plus 1 is equal to 0 is m2. We are going to consider the slope of this line is equal to m2. अब ये हमें मिल जाता है -4 डिवाइड बाय -1 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब ये कैसे आया, तो ये भी हमने सीखा हुआ है। अगर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर ये फॉर्म में कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है तो आप डायरेक्टली इसका स्लोप निकाल सकते हो। द स्लोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाय बी, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। आप अगर इसके अंदर निकालते हो तो डायरेक्टली आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। यू कैन सी दिस इक्वेशन, हमारे पास है 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y को हम दूसरे साइड लेके जाते हैं तो मिलता है y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब ये फॉर्म में हो गया, सो डायरेक्टली यू गेट द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज 4। सो हियर यहाँ पे हमने ये वाला टर्म यूज किया है, तो ये हो जाता है इस इक्वेशन में a का वैल्यू अगर देखें तो हमारा a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू दिया है -1। सो पुटिंग इट ओवर हियर गिव्स अस -4 डिवाइड बाय -1 विच इज इक्वल टू 4। तो हमें मिल गया स्लोप ऑफ द लाइन। अब let me clear the board. Now since the tangent at the point ph comma k is parallel to this line, ये वाली लाइन को हमारा tangent parallel है ना, तो हमें मिल जाता है slope m1 must be equal to m2, so therefore m1 is equal to m2 और हमें मिल गया m1 is equal to 4। तो m1 का वैल्यू हमें मिल गया, लेकिन m1 का वैल्यू क्या है 2h, so let's put the value over here। तो also we know that 2h is equal to 4 giving us h is equal to 2। अब h का वैल्यू हमें मिल गया ये पॉइंट के लिए, p पॉइंट में h का वैल्यू हमें मिल गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में हमें मिला है k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 5, सो हमें मिलता है k इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमें पॉइंट मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, हमें k का वैल्यू मिला। सो हियर वी हैव h वैल्यू, हियर वी हैव k वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं p इज नथिंग बट 2,9। अब हमें पॉइंट मिल गया और हमारे पास स्लोप तो ऑलरेडी है, राइट? सो therefore the point is 2,9 and the slope of the tangent is 4। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द tangent at the point 2,9 that will be given by y minus 9 is equal to 4 times x minus 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलता है y minus 9 is equal to 4x minus 8, x पॉजिटिव है, so all the terms to the right hand side will give us 4x minus y plus 1 is equal to 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए पहले हमें चाहिए स्लोप। सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 2,9 इज इक्वल टू m डैश विच इज -1 डिवाइड बाय m1, so that value is -1 divided by 4।
अब हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं. सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y माइनस 9 इज इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 4 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2, गिविंग अस 4y माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2. x नेगेटिव है, ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड विल गिव अस x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0. तो हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. हमें यही चाहिए था, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. सो दैट विल गिव अस, hence the equation of the tangent and the normal are 4x minus y plus 1 is equal to 0 and x plus 4y minus 38 is equal to 0 respectively. So I hope you have understood this. अब ये प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम से अलग था. प्रीवियस में हमें पॉइंट दिया था और हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया था और हमें फाइंड आउट करना था टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. लेकिन यहाँ पे हमें वैसा नहीं दिया है. हमें क्या दिया है, हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसी और लाइन को. सो व्हाट वी डू इज, वी डोंट नो द पॉइंट, तो हमने ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट अपने से कंसिडर किया, दैट इज पी एच कॉमा के. ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एच एंड के. अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले सॉल्व करेंगे इसको. तो सॉल्व करने के लिए दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. तो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1. अब हमें पता है कि हमारी टेंजेंट जो है ये कर्व की, वो ये वाली लाइन को पैरेलल है. सो वी फाइंड आउट व्हाट इज द स्लोप ऑफ बोथ. लाइन का भी स्लोप फाइंड आउट किया और हमने कर्व का भी स्लोप फाइंड आउट किया. सो कर्व का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने कर्व को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और हमने पॉइंट पी एच कॉमा के उसके अंदर पुट कर दिया. तो हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. वंस यू गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हमें मालूम है हमारी जो लाइन है ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है हमारे टेंजेंट को. तो हमने स्लोप ऑफ द लाइन भी निकाल लिया. स्लोप ऑफ द लाइन हमें मिला 4. आफ्टर वी हैव गॉट द स्लोप ऑफ द लाइन, सो वी नो द वैल्यू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 4. तो ये वाले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया वैल्यू ऑफ m1 इज इक्वल टू 4. तो हमें मिला 2h इज इक्वल टू 4. तो h का वैल्यू मिल गया. अब जैसे ही h का वैल्यू मिल गया, हमने इक्वेशन 1 यूज किया तो हमें मिल गया वैल्यू ऑफ k. तो हमें मिल गया हमारा पॉइंट पी एच कॉमा के. आफ्टर वी हैव गॉट द पॉइंट, वी नो द स्लोप. तो स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमें मिल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं. आगे का प्रोसीजर, ये जो यहाँ का प्रोसीजर है, दिस इज द सेम प्रोसीजर दैट वी हैव अप्लाइड फॉर द प्रीवियस सम. वहां पे पॉइंट दिया था, स्लोप निकाला और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला. सो हियर दैट वाज ओनली डिफरेंट पार्ट. ये वाला पार्ट अलग है प्रीवियस सम से. प्रीवियस में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सम दिया, सॉल्व किया था. नाउ दिस पार्ट वाज डिफरेंट. नाउ वन मोर थिंग, अब ये वाली जो लाइन थी ये पैरेलल थी, लेकिन इन प्लेस ऑफ पैरेलल इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा. जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, m1 इज इक्वल टू m2. लेकिन जब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे टैंजेंट जो है और नॉर्मल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने देखा स्लोप कैसा हो जाता है, m1 और यू कैन से m डैश इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m, राइट. तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट यूज करेंगे. m डैश की जगह पे हम लिखते हैं m2 और यू कैन से m1 इज इक्वल टू m1 इज -1 डिवाइड बाय m2. तो वो कंसेप्ट आप यूज करोगे यहाँ पे. तो आप दोनों का स्लोप, तो आपको m1 इक्वल टू m2 के जगह पे मिल जाएगा m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय m2. तो स्लोप ऑफ m1 तो मिल गया है. अब ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे and then you will solve it in the similar manner. So I hope you have understood how the sum has to be solved. So students will stop over here for the day. ये वाले एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सम्स जो है वो आप ट्राई करना,
Few sums are remaining in exercise number 4.1. I hope you will be able to complete them. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.